آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ نیوز۔ افغانستان کی راجدھانی کابل میں خودکش حملے میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور درجنوں افراد زخمی ہوئے اور یہ دھماکہ وسطی کابل میں ایک اسکول کے قریب واقع پولیس چیک پوسٹ پر ہوا۔ حملے میں ایک پولیس اہلکار بھی ہلاک ہوا ہے۔ محکمہ داخلہ کے ترجمان کے مطابق دھماکے کی زد میں آنے سے کئی شہری بھی زخمی ہو گئے ہیں، ان میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ابھی تک کسی بھی تنظیم کی جانب سے حملے کی ذمہ داری نہیں لی گئی ہے۔ خبروں کے مطابق خودکش بمبار پیدل تھا اور چیک پوسٹ کے قریب اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ واضح ہے کہ جائے وقوع سے واردات خزانہ اگر بات کرتے ہیں وزارت خزانہ اور وزارت انصاف کا صدر دفتر موجود ہے۔ صدارتی محل سے بھی یہ علاقہ کافی قریب ہے اور یہ حملہ اس وقت ہوا جب شہر میں ہزاروں افراد دہشت گردانہ حملوں کے خلاف احتجاج کے لیے جمع تھے۔ واضح ہو کہ غزنی اور ہرات صوبوں میں حالیہ تصادم کے دوران بڑی تعداد میں پولیس اہلکار اور عام شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر کچھ عرصے کی خاموشی کے بعد غازہ پھر سے شورش زدہ دکھنے لگا ہے اور گزشتہ رات اسرائیلی فوج کے فضائی حملے سے ہوئے نقصان کا آج صبح اندازہ لگا۔ ساحلی علاقے کا بڑے حصے میں اس حملے کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ حملے میں کی اطلاع ہے پوری رات سرحدی علاقہ سائرن کی آواز سے گونجتا رہا۔ حماس کا کہنا ہے کہ حملے کی کارروائی اسرائیلی فوج کی جانب سے شروع کی گئی۔ حماس کے مطابق گاڑیوں پر سوار اسرائیلی فوجیوں نے حماس کے سیکورٹی گارڈ پر فائرنگ شروع کر دی۔ پیچھا کرنے پر اسرائیلی فوج اپنی سرحدوں پر داخل ہو گئے۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس کے بعد اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے کم از کم 40 میزائل داغے گئے اور اسرائیلی حملے میں ہلاک ہوئے لوگوں کی تزئین اور تدفین میں بڑی تعداد میں مقامی لوگ شامل ہوئے۔ قبرستان کے راستے میں سینکڑوں افراد اس سے جڑتے چلے گئے۔ غم و غصے کے ملتے جلے جذبات سے لوگ اسرائیلی حملے کو اکسانے والی کارروائی قرار دے رہے ہیں۔ حماس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حملے سے مصر، قطر اور اقوام متحدہ کی کوششوں کو نقصان پہنچا ہے۔ علاقے میں امن قائم کرنے کے لیے حماس نے فوری طور پر اقتصادی بندشیں ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل نے علاقائی اور بین الاقوامی طاقتوں کی اس کوشش پر حملہ کیا ہے جو خطے میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل امن بحال کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا، وہ غزہ کا محاصرہ بھی ختم نہیں کرنا چاہتا۔ اسرائیلی قبضہ ان تمام جرائم کا ذمہ دار ہے۔ فلسطین کی جدوجہد جاری رہے گی اور اسرائیل کو اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ آپ کو بتا دیں کہ اتوار کی شام کو چند روز کے وقفے کے بعد فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی فوج کے جارحانہ عزائم پھر کھل کر سامنے آ گئے اور گزشتہ رات اسرائیل کے فضائی حملے میں 7 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل نے اس حملے میں حماس کے 2 کارکنوں کو بھی مارنے کا دعویٰ کیا ہے۔ فلسطین کے محکمہ صحت نے بھی 7 شہریوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج حماس کے ایک کارکن کی گرفتاری کے لیے جنوبی غزہ علاقے میں داخل ہوئے تھے، جس کے بعد دونوں جانب سے جھڑپ شروع ہو گئی اور دونوں جانب سے راکٹ داغے جانے کی بھی اطلاع ہے۔ اسرائیلی فورس کے مطابق غزہ سے داغے گئے 2 راکٹوں کو اس نے فضا میں ہی بیکار کر دیا۔ خبروں کے مطابق حماس جنگجوؤں کی جانب سے شدید فائرنگ کی گئی، تاہم کسی بھی اسرائیلی فوجی کے زخمی یا پھر ہلاک ہونے کی خبر نہیں ہے۔ علاقے میں کشیدگی کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنا فرانس کا دورہ واپس لوٹائے ہیں مختصر کر کے۔ سرحدی علاقوں میں واقع تعلیمی اداروں کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ پڑوسی عرب ممالک سے رشتہ استوار کرنے کے مقصد سے اسرائیلی وزیر اعظم نے حالیہ دنوں میں کئی عرب لیڈران سے ملاقات کی تھی اور اس کے بعد علاقے میں امن کی امید قائم ہونے لگی تھی۔ حملے کے بعد علاقے میں پھر کشیدگی کے امکان بڑھ گئے۔ ادھر فلسطینی صدر محمود عباس نے حریف سیاسی جماعت حماس پر شدید تنقید کرتے ہوئے اس پر فلسطینی ریاست کے قیام میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حماس فلسطینی عوام کی خیر خواہ نہیں ہے، وہ غزہ اور غرب اردن پر مشتمل آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی بھی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک حماس کی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ غالباً ان کا اشارہ قطر کی جانب سے حماس ملازمین کو دی جانے والی مالی امداد کی طرف تھا۔ قطر نے حماس ملازمین کو $1.5 کروڑ کی مدد دی ہے، جس کا اسرائیلی وزیر اعظم نے دفاع کیا۔ بنجامن نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اس مدد سے علاقے میں جاری کشیدگی کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ فلسطین کی موجودہ سیاست میں عرب ممالک کی
बाहमी रकाबतें भी खुलकर सामने आने लगी हैं। कतर खुलकर हमास के साथ है तो दूसरी जानिब सऊदी अरब उसके हरीफ फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ है। कतर के माली पैकेज के जवाब में सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी हुकूमत को फौरी तौर पर $6 करोड़ की इमदाद देने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी हुकूमत को माहाना $2 करोड़ की इमदाद का ऐलान किया था। ये इमदाद उसी का हिस्सा है और इस रकम से फ़लस्तीनी अथॉरिटी की फौरी ज़रूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। ये रकम अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीनों के लिए दी गई है। सऊदी अरब का कहना है कि मौजूदा तनाज़े पर फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखते हुए उसे सियासी, इक़्तिसादी और इंसानी शोबों में हर तरह की मदद दी जाती रहेगी। और डॉक्टर फजलुर रहमान साहब हमारे साथ जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे इस खबर पर। सियासी तज्ज़ियाकार हैं। इजराइल फौज की मौजूदा कार्रवाई से अमन बहाल की कोशिशों को कितना नुकसान पहुंचेगा? हालिया दिनों में जिस तरह से इजरायली वज़ीर आज़म की अरब लीडरान से मुलाकात हुई, इसके पेश नज़र यह हमला पीस प्रोसेस के लिए सेटबैक साबित हो सकता है क्या? नहीं, देखिए, जहां तक इजराइल और फिलिस्तीन का मसला है, ये बहुत ही नई बात नहीं है। जब भी एग्रीमेंट होते हैं, जब भी इस तरह कुछ नेगोशिएशन होते हैं, तो उनकी दो तरह की पॉलिसी है। जहां तक उनको जो हमास है, जिसको वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जहां तक उनको जितनी भी सियासी कुव्वतें हैं, उनका एक तरफ मकसद ये है कि उनकी कुव्वतों को कमजोर करना, उनकी जो पॉपुलरिटी है, उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है और उनका जो पॉलिटिकल से है फिलिस्तीनियन पॉलिटिकल एक्सरसाइज में, उसको खत्म करना। और दूसरी तरफ एक नेगोशिएटिंग टेबल पे लाके ये बताने की कोशिश करना कि हम किसी तरह के मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं है। इसमें किसी तरह की कोई ताज्जुब होने की बात नहीं, या इससे बहुत ज्यादा उम्मीद हासिल करने की बात नहीं कि अगर नेगोशिएशन हो रहा है या हमास से किसी तरह का एग्रीमेंट हो गया है तो फिलिस्तीन का मसला हल हो जाएगा। ये पिछले आप अगर देखेंगे 20-25 साल से इजराइल की पॉलिसी रही है, ये उसका एक एक्सटेंशन है, उसका एक इजाफिया ये है। इसमें ये उम्मीद करना कि अगर हमास का एग्रीमेंट हो गया, या फिर देखिए उसका एक पहलू ये भी है कि हमास से जैसे एग्रीमेंट हुआ कुछ चीजों का, फतह ने फौजी कहा कि फिलिस्तीनी इस चीज के खिलाफ है ये लोग, तो इंटरनल डिवीजन जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक कि एक रीजनल कंसेंसस नहीं बनेगा, जब तक कि एक ग्लोबल कंसेंसस नहीं बनेगा, तब तक फिलिस्तीनी मसले का कोई हल नहीं। लेकिन हालिया दिनों में जिस तरह से इजरायली वजीर आजम की अरब लीडरान से मुलाकात हुई थी, उसके पेश नजर ये हमला पीस प्रोसेस के लिए कितना सेटबैक साबित हो सकता है? नहीं, ये हमला तो चलता रहेगा, इसमें कोई वो नहीं है। देखिए, ये अरब ममालिक के वज़रा से, उनके हुक्मरानों से, उनके जो सो कॉल्ड जो लीडर्स हैं, उनसे मुलाकात करने से इजराइल की जो पॉलिसी है उस पर कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। आप बताएं कि पिछले 10-15 साल से जो गाजा में जो कुछ हो रहा है, जितनी सारी चीजें हो रही हैं, या जो हमास के दिन का रवैया है, जो फतह के दिन रवैया है, जो इंटरनल पॉलिटिकल डिवीजन है, जो इजरायली पॉलिटिकल जो क्लास उसका जो एसर्शन है, और किस किस तरह से जो फिलिस्तीनी जो डिमांड है उसका जिस तरह से डाइल्यूशन हो रहा है, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आने वाली है जी। लेकिन माली इमदाद के नाम पर जहां पर भी कतर और सऊदी अरब की आपसी खींचतान का असर भी अब दिखने लगा है। नहीं, जाहिर सी बात है, फिलिस्तीन मसले को अगर आप देखेंगे तो फिलिस्तीन को मसले के हल न होने में अगर सबसे बड़ी जो कुव्वत जो हायल है वो है वहां की अरब ममालिक की ताकतें, उनका डिवीजन। हर स्टेट ने ये चाहा है कि हम फिलिस्तीन के मसले को चैंपियन करें और उसकी बिना पर हम मुस्लिम ममालिक के चैंपियन बने, लेकिन उसका नतीजा ये होता है कि इंटरनल डिवीजन होता है और असल जो उसके जो विक्टिम है वो फिलिस्तीन की जनता, फिलिस्तीन का मुस्तकबिल है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत की डॉक्टर फजलुर रहमान साहब। इधर लीबिया में आइंदा साल मार्च से जून के दरमियान इंतखाब होने के इम्कान है। लीबिया के लिए मुकर्रर किए गए अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर गस्सान सलामे ने कहा कि अमन बहाली की कोशिशों को मजबूत करने के लिए किया गया है। ये वाज़ेह रहे कि पहले ये इंतखाबात 10 दिसंबर को कराने की तजवीज़ थी, लेकिन हालिया तशद्दुद के बाद इसे मुअख्खर कर दिया गया है। हसन ने कहा कि इंतखाब की तारीख के ऐलान से कबल लीबिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस हवाले से इत्तफाक राय से कोई फैसला करना होगा। We want to ask them clearly during the national conference, what kind of elections do you want, parliamentary, presidential, etc. And what kind of law do we need, because we don't have a law. The House of Representatives has been meeting all the summer, but it has been sterile, let's face it, producing no law on the referendum, producing no legislative law. So I think we need a wider representation.
सिंगापुर दौरे पर आए मलेशियाई वजीर आजम महातिर मोहम्मद ने मलेशिया और सिंगापुर को जुड़वां भाई से ताबीर किया है। सिंगापुर के वजीर आजम ली जेन लुंगा की जानिब से उनके एजाज में दिए गए खास तौर से जोहराना के मौके पर उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात काफी पुख्ता और मजबूत हैं। वाज़ेह है कि मलेशियाई वजीर आजम 13 नवंबर से शुरू हो रही आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर पहुंचे। कई सालों बाद अमली सियासत में वापस लौटे महातिर मोहम्मद ने गुज़िश्ता मई में वजीर आजम का ओहदा संभाला था और वजीर आजम बनने के बाद पहली दफा वो कसीर मुल्क की समिट में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि गुज़िश्ता सितंबर में दोनों मुल्कों के माबैन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का मुआहदा किया गया था और इस प्रोजेक्ट पर $17 बिलियन का खर्च का इम्कान है और रेल रूट का सबसे ज्यादा फायदा दोनों मुल्कों को बनेगा। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में पार्लियामेंट तहलील किए जाने के मामले को लेकर दाखिल की गई अपील पर आज से सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई। वाज़ेह कि श्रीलंकाई सदर मैत्रीपाला सिरिसेना ने गुज़िश्ता जुमे को पार्लियामेंट तहलील करके 5 जनवरी को नए इंतखाबों का ऐलान कर दिया था। इस फैसले पर अपोजिशन लीडरान के साथ ही बैन अल-अक़वामी सतह पर भी काफ़ी तनक़ीद हो रही है। आपको बता दें कि ये सारा बहरान उस वक्त पैदा हुआ जब वज़ीर आज़म बनने के 2 हफ्ते बाद ही महिंद्रा राजपक्षे ने 44 अरकान की पार्लियामेंट के साथ मिलकर के शिवसेना के खिलाफ बगावत कर दी थी। शिवसेना ने साबिक वज़ीर आज़म रानिल विक्रमसिंघे को बरतरफ करके राजपक्षे को वज़ीर आज़म बनाया था। The honored Supreme Court will interpret the various stipulations stated in the constitutions, and I think justice will prevail. Nobody has indicated or started negotiations or curtailed any of the existing grants and aids. I mean, international community must realize that this is democracy. Go to the people, take their mandate. This is undemocratic. Are you saying that it is undemocratic? पहली जंग अजीम के खात्मे के 100 साल पूरे होने पर फ्रांस समेत दीगर यूरोपीय और एशिया ममालिक में मुनक्किद प्रोग्राम में जंग में हलाक हुए फौजियों को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर जंग की हौलनाकियों को याद करके मौजूदा दुनिया को अमन का गहवारा बनाने का अज़्म भी लिया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में वाक़ सदारती महल इलियाजी पैलेस में मुनक्किद खुसूसी तकरीब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल समेत 70 ममालिक के सरबराह मौजूद थे। अपने खिताब में फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन ने हुब्बुल वतनी और कौम परस्ती पर तबसरा करते हुए कहा कि दोनों के दरमियान फर्क की वजह वाज़ेह न होने से संगीन नताइज बरामद होने का खतरा लाहक हो सकता है। वहीं बेल्जियम के यप्रेस में मुनक्किद प्रोग्राम में बेल्जियम के शाह फिलिप और उनकी अहलिया मेथलाइड, वजीर आजम और उनकी कैबिनेट के वज़रा और ब्रेग्जिट के चीफ मुज़ाकरातकार शामिल हुए। इस मौके पर वार मेमोरियल पर गुलाह अक़ीदत पेश किया गया। एक अंदाजे के मुताबिक 1914 से 18 के दरमियान हुई इस जंग में 6 लाख से ज़्यादा फौजी हलाक हुए थे। 11 नवंबर 1918 को इस जंग का खात्मा हुआ था। उधर इस मौके पर इंग्लैंड के मुख्तलिफ मकामात पर चरागा करके पहली जंग अजीम में हलाक हुए जवानों को याद किया गया। वहीं इंग्लैंड के शाही खानदान के अफराद और जर्मन सदर फ्रैंक स्टेनमायर ने वेस्टमिंस्टर एबी में मुनक्किद 7 साला तकरीब के दौरान पहली जंग अजीम में हलाक हुए लाखों नामालूम जवानों को खराज अकीदत पेश किए। तकरीब में क्वीन एलिजाबेथ, प्रिंस चार्ल्स विलियम्स और हैरी बरतानवी वजीर आजम भी मौजूद थे और इस मौके पर जवानों की कब्रों पर गुलाह अकीदत पेश किया गया। 7 साला तकरीब को एक तारीखी वाक़या करार दिया जा रहा है क्योंकि ये पहला मौका था जब सेनोटॉफ मेमोरियल पर जवानों को खराज अकीदत पेश की गई और कोई जर्मन सदर हाजिर हुआ। उधर इस मौके पर दुबई में वाक़ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पोलैंड के कौमी परचम के रंग से जगमगा उठी। वाज़ेह की पहली जंग अजीम के खात्मे के साथ ही पोलैंड को आज़ादी नसीब हुई थी। 18वीं सदी में पोलैंड पर उसके मशरक़ी और मगरबी ममालिक ने कब्जा कर लिया था। वाज़ेह है कि पहली जंग अजीम में एक तरफ रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया था तो दूसरी जानिब ब्रिटेन की क़यादत में उनके 9 आबादियाती ममालिक और दूसरे यूरोपीय ममालिक की फौजी थी। ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि पहली जंग अजीम के दौरान खिलाफत उस्मानिया ने भी बिलवास्ता तौर पर जर्मनी का साथ दिया था।
उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पेरिस आमद पर मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता अफराद ने पुरजोर एहतजाज किया। अपनी नाराजगी जाहिर करने के साथ ही मुजाहिरीन हवा में नारंगी रंग का एक ऐसा गुब्बारा लहरा रहे थे जिस पर ट्रंप की शक्ल बनी हुई थी और प्लेस डी ला रिपब्लिक पर हुए इस एहतजाज में बड़ी तादाद में मुजाहिरीन शामिल थे। आपको बता दें कि जिस तरह का एहतजाज गुज़िश्ता जुलाई में ट्रंप के इंग्लैंड दौरे के दौरान भी हुआ था, अमेरिका और डबलिन में भी इस तरह का एहतजाज हो चुका और इसी तर्ज पर पेरिस में भी ट्रंप की पॉलिसियों की तनकीद की गई। Which is a message to President Trump, and we're here today really to send a message to President Trump and to equally to President Macron for inviting him here. In inviting him here, President Macron is condoning Trump's racist, homophobic, xenophobic, Islamophobic policies that he's promoting in the U.S. and that we're feeling the effects of abroad, that we're seeing everywhere in the world. अमेरिकी और रूसी सदर के माबैन सर्द होते रिश्ते की एक झलक पेरिस में भी दिखाई दी। 7 साला तकरीब के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन दोनों मौजूद थे, लेकिन खबरों के मुताबिक दोनों के दरमियान रस्मी अलैक सलैक के अलावा कोई दूसरी बात नहीं हुई। उम्मीद की जा रही है कि पहली जंग अजीम के खात्मे की 7 साला तकरीब के दौरान दोनों लीडरान सर्द जंग के दौरान हुए मिसाइल समझौते पर नए सिरे से बातचीत करेंगे। इधर अमेरिका में गुज़िश्ता हफ्ते हुए कांग्रेस इंतखाब का मामला अब कोर्ट में भी पहुंच गया है। फ्लोरिडा के रिपब्लिकन गवर्नर रिक स्कॉट ने इलेक्शन एहलकारों के खिलाफ अपील दायर करके वोटिंग मशीन और बैलेट पेपर जब्त करने का मुतालबा किया। यहां पर स्कॉट और डेमोक्रेट उम्मीदवार बिल नेल्सन के बीच जबरदस्त मुकाबला है। गुज़िश्ता शनिचर को यहां पर दोबारा काउंटिंग शुरू हुई। काउंटिंग में रिकाउंटिंग के तहत स्कॉट की सबकत 12,500 वोट कम हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों उम्मीदवार एक दूसरे पर जमहूरी अमल को मुतासर करने का इल्जाम आयद कर रहे हैं। इसी तरह पाम बीच काउंटी में रिपब्लिकन उम्मीदवार रॉन रेस्टानिस की वोटों की तादाद भी रिकाउंटिंग के बाद 33,700 कम हो गई। Y'all, I may not be greeting you tonight as the governor of the state of Florida, but I'm the mayor of Tallahassee, and more than that, I'm an American and a Floridian, and I demand that every vote be counted in this process. God bless you. God keep you. Let's keep the faith, and let's count every vote. और इस वक्त हमारे साथ सियासी तज्जियाकार डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब फोन लाइन पर जुड़ गए। उनसे बात करते हैं इस खबर पर। सर, जंग अजीम के खात्मे के 100 साल पूरे होने पर पेरिस में सभी बड़े लीडर शामिल हुए हैं। आपके नज़दीक क्या ये सिर्फ रस्मी तकरीब थी या फिर वाकई कुछ ऐसा करने की कोशिश की गई जिससे कि दुनिया में अमन की फिजा कायम हो? इसके तनाजुर में मैं 2 बात कहूँगा। वो ये कि इस वक्त दुनिया में जो इस तमाही सलामती का जो भी मंसूबा, जो भी फार्मूला, जो भी इंस्टीट्यूशन मौजूद थे, वो अमेरिका और यूरोप के पॉलिसी को से बहुत ही कमजोर हो गए हैं। दूसरी वजह से यूनाइटेड नेशंस है और दीगर इदारे बहुत ही कमजोर हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि जो डेमोक्रेसी थी जिसको मॉडल बनाकर पेश किया गया था, उस डेमोक्रेसी को खुद खतरा लाक है और बाहर से नहीं बल्कि अंदरूनी तौर से हर जगह डेमोक्रेसी में, चाहे अमेरिका हो या मगरबी यूरोप हो। लेकिन सर, ऐसा नहीं लगता कि अमेरिकी सदर अपने खिलाफ रोज नया महाज खोलते जा रहे हैं? नहीं, मैं उस पे आ रहा हूँ। तो हर जगह डेमोक्रेसी के खिलाफ, डेमोक्रेसी के अंदर ही एक तरह की लहर पैदा हो रही है जिसको हम लोग पॉपुलिज्म कह रहे हैं। इससे भी खतरा लाक है। तीसरी बात अहम यह है कि अमेरिका का जो सदर है उसके पॉलिसी के वजह से वाकई में कौमी सलामती का जो मसला है या इज्तिमाई सलामती का जो मसला है उसको खतरा लाक हो गया है। इस सोवियत रसा के साथ जिस तरह से वो एक एक करके ट्रीटी को खत्म कर रहा है और उससे खासा बढ़ गया है कि यूरोप में फिर एक न्यूक्लियर जंग की और न्यूक्लियर आर्म्स रेस की एक नई लहर पैदा हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी है सर, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। रॉजर फेडरर के रिकॉर्ड 7वीं दफा एटीपी फाइनल जीतने की मुहिम को जबरदस्त झटका लगा है। हेवीवेट ग्रुप के पहले ही मुकाबले में जापान के केई
निशोकोरी ने साबिक आलमी नंबर 1 को सीधे सेटों में 7-6, 6-3 से शिकस्त दी। साबिक चैंपियन ने बेहद मुस्बत अंदाज में मैच की शुरुआत की, लेकिन सेट के आखिरी लम्हे में उनकी लय बिगड़ने लगी। टाई ब्रेकर में निशोकोरी ने एक मरहले में 6-1 की सबकत हासिल कर ली थी। हालांकि अगले 3 पॉइंट जीतकर उन्होंने वापसी का इशारा दिया। इधर इंग्लिश प्रीमियर लीग के अहम मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपने रवायती हरीफ मैनचेस्टर सिटी के हाथों 3-1 की शर्मनाक शिकस्त उठानी पड़ी। स्टार मिडफील्डर पोग्बा के बगैर खेल रही मैन यू की टीम पूरे मुकाबले में थकी थकी सी नजर आई। बरखिलाफ इसके सिटी ने मैच की शुरुआत से ही खेल पर अपना दबदबा कायम रखा और मैच के आखिरी लम्हे में गुंदोगान ने तीसरा गोल करके सिटी की जीत को यकीनी बना दिया। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता सीजन में यूनाइटेड ने आखिरी लम्हे में वापसी करते हुए सिटी को 3-2 से शिकस्त दे दी थी और जीत के साथ ही पॉइंट टेबल पर सिटी की लीड कायम है, जबकि मैन यू 8वें नंबर पर खिसक गया है। मैच के बाद कोच जॉर्ज मॉरिनो ने यूनाइटेड की हार के लिए चैंपियंस लीग के सख्त मुकाबले को जिम्मेदार ठहराया। इधर जबरदस्त फॉर्म में चल रहे ब्रिटेन के लेविस हैमिल्टन ने ब्राजील ग्रां प्री में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सीजन में 10वां खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही मर्सिडीज टीम ने मुसलसल 5वीं दफा कॉन्ट्रैक्टर चैंपियनशिप का खिताब भी जीत लिया है। वाज़ेह हो कि हैमिल्टन ब्राजील ग्रां प्री से कबल ही ड्राइवर चैंपियनशिप का खिताब अपनी झोली में डाल चुके थे और पोल पोजीशन से रेस की शुरुआत करने वाले हैमिल्टन को शुरुआत में ही रेड बुल्स के मैक्स वेस्टप्पन से सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ा, लेकिन फोर्स इंडिया की गाड़ी से टक्कर के बाद हैमिल्टन को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल गया और टक्कर के बावजूद मैक्स दूसरे नंबर पर रहे, जबकि किमी राइकोनन तीसरे नंबर पर आए। तो वर्ल्ड न्यूज में भी इतना ही, लेकिन इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी है। आप देखते रहिए जी सलाम।